آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 3 اکتوبر 2025 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی حملے ہوئے خطرناک، آج صبح سے لگ بھگ 50 فلسطینی شہید۔ UNRWA چیف کا بڑا بیان، کہا اسرائیل غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی کر رہا تیاری۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکن گرفتاری کے بعد بھوک ہڑتال پر بیٹھے۔ اسرائیل کا دعویٰ فلوٹیلا میں کوئی انسانی مدد کا سامان نہیں تھا۔ 11 جہازوں کا نیا قافلہ غزہ کی طرف روانہ، ترکی سے بھی چلی 40 سے زیادہ کشتیاں۔ یوکرین کا بڑا الزام، کہا روس نے کیا گیس نیٹ ورک پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ روس اور ایران کا اعلان، E3 کا اسنیپ بیک غیر قانونی اور ناجائز۔ اور انڈین ایئر فورس کے چیف کا بڑا دعویٰ، کہا آپریشن سندور میں پاکستان کے 12 ایئر کرافٹ کیے تھے تباہ۔ تو یہ تھی کچھ بڑی سرخیاں، ان کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں اس بلیٹن میں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ پہلی خبر سنیے، غزہ کی سرزمین پر پھر خون کی بارش ہوئی ہے۔ الجزیرہ سے ملی معلومات کے مطابق فجر کی اذان سے آج اب تک اسرائیلی حملوں میں قریب 50 فلسطینی شہید کر دیے گئے، جن میں سے صرف غزہ سٹی سے 31 لوگ مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اب نئے ہتھ کنڈے ایجاد کر لیے ہیں۔ ریموٹ کنٹرول گاڑیاں جو بارود سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری بستیاں اڑانے بھیجی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ سٹی جو ہے، جہاں لاکھوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور جن کو آخری موقع کہہ کر جان بچانے کی ہدایت دی گئی تھی، وہ اب ایک موت کی سٹی بن چکی ہے۔ دوسری طرف حماس نے الجزیرہ کو بتایا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 پوائنٹ والے امن منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ہے اسرائیل کی جنگ کو روکنا اور قتل و غارت کا سلسلہ ختم کرنا۔ حماس نے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے رخ کا اعلان کر دے گا۔ یہ بڑی خبر ہے۔ UNRWA کے چیف فلپ لازرانی نے خوفناک اطلاع دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج غزہ سٹی میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ وارننگ اس وقت سامنے آئی جب اسرائیل نے دھمکی دی کہ غزہ سٹی میں باقی رہنے والے تمام فلسطینی دہشت گرد یا دہشت گردی کے حامی سمجھے جائیں گے۔ لازرانی کا کہنا ہے کہ یہ بیان دراصل ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبے کا مطلب ہے عورتوں، بچوں، بزرگوں اور ان سب کو مار دینا جو شہر چھوڑنے پر راضی نہیں۔ انہوں نے صاف کہا کسی بھی حکومت کو شہری آبادی کے قتل کا لائسنس حاصل نہیں ہو سکتا، اور اگر دنیا خاموش رہی تو یہ خاموشی اس نسل کشی میں شرکت سمجھی جائے گی۔ دوستو، غزہ آج صرف بمباری اور گھیرا بندی کا شکار نہیں بلکہ ایک اعلان شدہ قتل عام کے سائے میں جی رہا ہے۔ غزہ تڑپ رہا ہے اور وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ غزہ سٹی سے نکالے گئے لاکھوں فلسطینیوں کو اسرائیل نے ساؤتھ میں جن ہیومینیٹیرین زونز کی طرف دھکیلا ہے، یونائٹڈ نیشنز نے انہیں موت کے میدان قرار دیا ہے۔ کہا یہ کوئی ہیومینیٹیرین زون نہیں ہے۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر، جو اس وقت غزہ میں ہی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ساؤتھ غزہ میں کوئی محفوظ علاقہ محض ایک مذاق ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ آسمان سے بم گرتے ہیں، وہ اسکول جنہیں پناہ گاہ بنایا جائے وہ راکھ میں بدل دیے جاتے ہیں اور خیمے آگ کی لپٹوں میں جل اٹھتے ہیں۔ اسرائیل نے اب تک جنوبی غزہ کے خان یونس اور آس پاس کے علاقوں کو ہیومینیٹیرین زون ڈکلیئر کیا تھا، لیکن وہاں بمباری جاری رکھی۔ یونائٹڈ نیشنز کا صاف کہنا ہے کہ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ سیف زون از ایکول ٹو ڈیتھ زون۔ غزہ کا محاصرہ، غزہ کی ناکہ بندی توڑنے اور انسانی مدد پہنچانے نکلے گلوبل سمود فلوٹیلا کے کارکن، جنہیں اسرائیلی فوج نے سمندری سرحد سے باہر اغوا کیا تھا، اب بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے ہیں۔ جمعے کے روز انٹرنیشنل کمیٹی ٹو بریک دا سیج آف غزہ نے اعلان کیا کہ جہازوں پر گرفتار کئی کارکنوں نے یہ کہا ہے کہ وہ گرفتاری کے لمحے سے ہی بے میعادی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ایک نامعلوم مدت تک وہ کچھ نہیں کھائیں گے اور پئیں گے۔ یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی آخری ناؤ بھی ضبط کر لی۔ شروع میں اس قافلے میں 44 جہاز تھے، مگر اب سب اسرائیل کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ فلوٹیلا کے تمام کارکن بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے، کچھ کھا پی نہیں رہے، لیکن اسرائیل نے ایک الگ دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جانے والی گلوبل سمود فلوٹیلا میں کوئی انسانی مدد یا کھانے کا سامان موجود ہی نہیں تھا۔ یہ غزہ کے لیے کچھ نہیں لا رہے تھے، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ اسرائیلی فورن منسٹری نے یہ کہا ہے کہ کل روکی گئی 40 کشتیوں میں سے کسی ایک میں بھی راحت کا سامان نہیں ملا۔ منسٹری نے اسرائیلی پولیس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں پولیس کا اسپوکس پرسن ڈین
एस्डन एक बड़ी कश्ती का अंदरूनी हिस्सा दिखाता है कैमरे से और कहता है कि देखो ये सब बिल्कुल खाली है। एस्डन के मुताबिक अगर वाकई कोई मदद का सामान होता तो फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजर्स इजराइल और दूसरे मुल्कों की पेशकश क्यों ठुकराते जिसमें कहा गया था कि सामान सीधे गजा भेज दिया जाएगा और समंदर का रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान हमें दे दो। कहा पेशकश क्यों नहीं मानी? उसने कहा कि ये कभी इंसानी मदद पहुंचाने का मामला था ही नहीं, ये सब सुर्खियां और सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने का खेल था। अब इस खबर को दुनिया ये कह रही है कि इसराइल का एक और झूठ है, ये दिखाने के लिए कि गजा के लिए कोई मदद नहीं आने वाली। तो ये सब लोग जो सफ़र कर रहे थे अपनी जान पर खेल कर, समंदर क्या किसी को बख्श देता है? ऊंची ऊंची लहरों में ये कश्तियां छोटी लेकर क्यों निकले थे? यूं ही मौज मस्ती सपाटे के लिए? ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं कि इन्हें और फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं, ये 4 जुलूस ही निकाल देंगे तब भी फॉलोअर्स उतने बढ़ जाएंगे। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए 11 नए जहाज समंदर का रुख कर चुके हैं। 11 नए जहाज। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन FFC ने जुमेरात को ऐलान किया कि इन जहाज़ों में तकरीबन 100 लोग सवार हैं। कोएलिशन के मुताबिक 25 सितंबर को इटली के ओत्रांतो बंदरगाह से इटली और फ्रांस के झंडे लहराते 2 जहाज़ रवाना हुए थे। 30 सितंबर को इनसे कॉन्शियस नाम का जहाज़ आ मिला। अब ये तीनों जहाज़ एक और 8 जहाज़ वाले काफिले 1000 मैडलिन्स टू गजा से मिलकर 11 जहाज़ों का एक बड़ा काफिला बन चुके हैं। ये काफिला गजा की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त यूनान यानी ग्रीस के क्रीट बंदरगाह या क्रीट जजीरे के साहिल के करीब है। गौरतलब है कि 2008 में बनी FFC अब तक कई बार ऐसे मिशन चला चुकी है ताकि गजा के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और दुनिया को इसराइली नाकाबंदी से पैदा होने वाली इंसानी बहरान यानी मानवीय संकट की तरफ मुतवज्जे किया जा सके, उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब मिलेगी सर आपको। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने इस्तांबुल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव को, एक प्राइवेट जासूस को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो इसराइली एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुलजिम की पहचान सेरकान चिचैक के नाम से हुई है। उसे मेट्रॉन एक्टिविटी नामी एक ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। फिलहाल खबर है कि सच उगलवाने के लिए उसकी गुद्दी लाल की जा रही है, लेकिन इस खबर को जब हेडलाइंस बना रहे हैं अखबार तुर्की से बाहर के, तो बार बार जोड़ रहे हैं कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में ईरान तुर्की के भी लोग शामिल थे और वो उसके बाद तुर्की ने एक्शन लिया है। कि प्रेशर बनाने की थ्योरी है क्या? यूक्रेन की हुकूमती गैस कंपनी नाफ्टोगाज ने ये कहा है कि रूस ने जुमे की रात गैस नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बयान के मुताबिक रूस ने खार्किव और पोल्तावा सूबे में गैस प्रोडक्शन सेंटरों पर 35 मिसाइलें और 60 ड्रोन दागे। नाफ्टोगाज कंपनी के सरबराह ने कहा कि हमारे कई मराकज़ को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कुछ नुकसान इंतहाई संगीन है। याद है कि रूस पहले भी दोस्तों यूक्रेन के बिजली नेटवर्क पर बार बार हमला करता रहा है, जिनसे लाखों लोग अंधेरे और सर्दी में फंस चुके हैं। अब रूस और ईरान का ऐलान सुन लीजिए, जिन्होंने कहा है कि E3 का स्नैपबैक गैर कानूनी है। ईरान और रूस ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी कि E3 की तरफ से लगाए गए यूएन की पाबंदियों के स्नैपबैक को सख्त लफ्ज़ों में रद्द कर दिया है। दोनों मुल्कों ने इस कदम को गैर कानूनी, नाजायज़ और सियासी मकासद वाला करार दिया। जुमे को मॉस्को में ईरानी सफ़ीर काजिम जलाली और रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रयाबकोव की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने E3 की इस पेशकश की मजम्मत की और ब्रिक्स कॉपरेशन पर भी बात की। जलाली ने कहा कि स्नैपबैक अब असल वायलेटर यानी अमेरिका को इनाम देने का जरिया बन चुका है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा रायबकोव ने भी यही कहा कि रूस बार बार कह चुका है कि यह अमल गैर कानूनी है और ये काबिल कबूल नहीं है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने गैर कानूनी तौर पर F-35 जंगी जहाज़ उसकी सरहद के करीब उड़ाए। वज़ीर ख़ारजा वेनेजुएला के जावान गिल पिंटो, उन्होंने कहा कि जुमेरात को मैकेटिया शहर के पास करीब 75 किलोमीटर दूर कम से कम 5 जहाज़ देखे गए। उन्होंने इसे उकसावे वाला कदम करार दिया जो कौमी सल्तनत के लिए ख़तरा है और इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है।
कुछ खबरें यहाँ से, बड़ी हेडलाइंस लेंगे बस। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट तबाह हुए। इंडियन एयरफोर्स के चीफ बोले कि F-16 समेत 6 फाइटर जेट्स हमने हवा में ही गिरा दिए पाकिस्तान के, और 6 बाकी के एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरबेस पे ही हमने तबाह कर दिए। जब वो खड़े थे हैंगर में थे तभी हमने उन्हें तबाह कर दिया। तो जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने आज जुमे को ये बयान दिया और ये वाकई बड़ा बयान है। और अगर एयरफोर्स ने हमारे किया है तो वाकई काबिल तारीफ़ काम है। इंडियन एयरफोर्स ने, पाकिस्तान का इस पर जवाब आना बाकी है। पाकिस्तान 6 अभी तक कह रहा था, हमने अब 12 गिरा दिए। अब ये तो दोनों के मुल्क की सरकार के बीच की बात, लेकिन इलेक्शन अगर कहीं हिंदुस्तान में हो रहा है तो ये बयान वहाँ बड़ा काम आएगा। सियासी लोग जो हैं ऐसे बयान आर्मी के और एयरफोर्स के उठा लेते हैं और फिर उसे अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखा अच्छा, हमको समझा रिया है, मतलब ये तरीके से जो है सियासत में ऐसे बयान काफ़ी काम आ जाते हैं। लोग इसे उठा लेंगे। हालांकि हमारी एयरफोर्स ने अच्छा काम किया है, हमारी आर्मी ने अच्छा काम किया है, हम उनके साथ हमेशा होना चाहिए। हर किसी को अपने मुल्क की फ़ौज के साथ होना चाहिए, जो जिस मुल्क से भी है। भारत ने पाकिस्तान की सेना पर बर्बरता का इल्ज़ाम लगाया। कहा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बना रही है, जो अब तक 12 लोगों की मौत। कहा कि POK में निर्दोष लोगों को निशाना बना रही पाकिस्तानी सेना, यानी पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, आपको पता है कि कश्मीर में, उधर वाला जो पाकिस्तान के हिस्से में है, वहाँ पर ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त बड़ा मसला है। और वहाँ पर अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये भी है कि आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के 10 सोल्जर्स को उन लोगों ने, आम लोगों ने वहाँ पर जो है अगवा कर लिया है, अपने पास रख लिया है एज अ गारंटी। और बड़ा गड़बड़ चल रहा है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ हेडलाइंस ले रहा हूँ। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। मैं PM मोदी को जानता हूँ, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करते। ये पानी पे चढ़ा रहा है बंदा हम लोगों को। हम अपमान तो बर्दाश्त नहीं करते, कोई नहीं करता, किसी भी मुल्क का बंदा। कौन बर्दाश्त करता बताओ? कोई नहीं। ये अपना काम निकालने के लिए पानी पे चढ़ा रहा है कि रूस से पेट्रोल खरीदना, वो कच्चा तेल खरीदना बंद मत करना, अमेरिका की पाबंदियों के आगे जारी रखना भाई। तो ये हमें चढ़ा रहा है। भारत चीन के बीच 26 अक्टूबर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। 5 साल पहले कोरोना काल में बंद हुई थी। पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगझू जाएगी। भारत और इंडिया का अच्छा हो रहा है। अब देखो ना, आपदा में अफसर तलाशने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, तो जाहिर सी बात है उधर से गड़बड़ी हुई तो इधर चालू हो गया। अब हम कम से कम इन्हें लाल आग तो नहीं दिखाते। अब तो हम ऐसी आग दिखाते हैं कि आओ ना, कभी हम भी आ रहे हैं, मुस्कुराती हुई आंखें। राहुल गांधी बोले, RSS और भाजपा की विचारधारा में कायरता यानी बुज़दिली है, उनकी सोच में। कमज़ोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं चीन से कैसे लड़ें। ये राहुल गांधी सियासी बयान है, इतना ही पढ़ना चाहिए। जो लोग दूर रहते हैं उन्हें पता तो चल जाए मुल्क में क्या बयानबाजी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।